موقع ملتا نہیں ہے ان کو ابھی جس میں ان کو اپنا چہرہ، جہاں تک اس آئینے کا تعلق ہے، چناوی آئینے کا تعلق، ایک بار ان کو ملے نا، وہ آپ کا اور میرا انتظار نہیں کر لیں گے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں یار، سہمے ہوئے ہیں. کیوں آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ان کے چہروں پر ہی نظر ڈالیے، الیکشن کا نام لے لیجئے، رنگ اڑ جاتا ہے. ایک بار پوچھنا تھا نا ان سے، اسمبلی کو ڈسالو کیوں کیا؟ اس وقت ستپال ملک کو کیوں بلایا؟ فیکس کیوں خراب ہو گیا؟ صاحب یہ واقعات ہیں. وہ برا محسوس کرتے ہیں جب ہم سچائی کی طرف ان کی دھیان چاہتے ہیں کہ مبذول ہو. ان کو اچھا نہیں لگتا. بلا ایک شہری ہونے کے ناطے میں نا امید کیوں ہوں؟ جو مجھے اس ادارے سے ملا، آج بے شک اس میں رکاوٹیں آ جائے، پریشانیاں حائل ہو جائے، لیکن مایوس نہیں رہوں گا میں. اب 370 کا فیصلہ آیا، مینیپولیٹ کرنا چھوڑ دیجیے آپ. اگر ایک بے روزگار روزگار مانگے یا روزگار حاصل کرنے کی توقع رکھے یا جدوجہد کے راستے پر کاربند رہے، کیا اس کو آپ مینیپولیشن سے تعبیر کر لیں گے؟ ہم پوچھتے ہیں جو نیتا ہیں، اب ہمیں دکھائیے کون آرٹیکل 370 واپس مانگ رہا ہے کشمیری نیتاؤں کے علاوہ. بھاجپا یہ کہتی ہے کہ کشمیری جو جتنے بھی نیتا ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کشمیری لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. یہ ہمارے دیش کی ایک بڑی عدالت نے فیصلہ سنایا. اب آپ کسی اچھی چیز کی بات کیجیے. 370 بیڈ ہاسپٹل مانگیے، 370 سکولز مانگیے، 370 کالجز مانگیے، 370 مت نہیں مانگیے آپ. یہ غلطی ہم نے کی نہیں، یہ غلطی ہم کبھی کریں گے نہیں کہ ان کے دروازے پر دستک دیں جہاں ہماری آواز کبھی سنی نہیں گئی، نہ سننے کی امید ہی ہے، نہ کوئی توقع ہے. میرے ساتھ ہے جموں کشمیر کے قدامور نیتا محمد یوسف تارگامی. آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے نیوز روم میں. بہت بہت شکریہ. اب مجھے بتائیے، شروعات کرتے ہیں آرٹیکل 370 سے، کیونکہ آرٹیکل 370 پہ آپ لوگوں نے ایک پی ایچ ڈی بنایا، اس کے بعد آپ نے جنگ لڑی. آپ نے کہا کہ 370 کو ہم واپس لائیں گے، لیکن بالآخر سپریم کورٹ نے اس پہ ٹھپا لگایا، کہا کہ 370 واپس نہیں آ سکتا. کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ سب سے پہلے یہ کہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی. ہمارا اب بھی یہی ارادہ بھی ہے اور ہم وعدہ بند بھی ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر، جمہوری قوتوں کے ساتھ، ان کی مشاورت سے اس جدوجہد کو آگے لے جائیں گے. کوئی ٹائم لائن نہیں، یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں. سپریم کورٹ میں ہم گئے اسی توقع کو لے کر، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا اونچا انسٹیٹیوشن ہے جسے انصاف کا مندر کہا جاتا ہے، وہاں سے جموں کشمیر کے عوام کو بھی انصاف ملے گا. ہوا نہیں، انصاف ملا نہیں. لیکن کیا یہ حرف آخر ہے؟ میں مانتا نہیں. یقیناً ایک پڑاؤ میں ہماری گزارشات کو سنا نہیں گیا یا مانا نہیں گیا، لیکن اور اپارچونیٹیز بھی کھلی رہیں گی اور بڑی عدالتیں بھی ہیں، جنتا کی عدالتیں. لیکن اب مجھے بتائیے کہ کیونکہ بھاجپا یہ کہتی ہے کہ کشمیری جو جتنے بھی نیتا ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کشمیری لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. یہ ہمارے دیش کی ایک بڑی عدالت نے فیصلہ سنایا. اب آپ کسی اچھی چیز کی بات کیجیے. 370 بیڈ ہاسپٹل مانگیے، 370 سکولز مانگیے، 370 کالجز مانگیے، 370 مت نہیں مانگیے آپ. ہم نے یہ مانگنے کا سوال نہیں ہے، اور ان سے ہم مانگے جن سے ہماری کبھی وفا کی امید ہے بھی نہیں. اور یہ غلطی ہم نے کی نہیں، یہ غلطی ہم کبھی کریں گے نہیں کہ ان کے دروازے پر دستک دیں جہاں ہماری آواز کبھی سنی نہیں گئی، نہ سننے کی امید ہی ہے، نہ کوئی توقع ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ تو ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں دو رائے نہیں. ہمارا احترام ہے، بہت اہمیت کا حامل ادارہ ہے،
आने वाले वक्त में भी। और लेकिन एक और चीज़ मैं कह देता हूँ, जिस बड़े इदारे से ये सारे इदारे जिन्होंने जन्म लिया, उस बड़े इदारे से हमें जो वहाँ से मिला वो हम खोएंगे नहीं, वो हम खोने नहीं देंगे। वो बड़ा इदारा है जहाँ से आईन मिला हमारे मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वापस लाएंगे 370 को? नहीं, मैं सर इसको ये हाँ और ना वाली बात नहीं, ये ऐसे मामलात हैं समाज के साथ जुड़े हुए, तारीख के साथ जुड़े हुए, इनको हाँ या ना, आप ना कर ले मैं हाँ कर लूँ, इससे मसले हल होने वाले नहीं है। इनके ये दूररस नताइज के हामिल मसाइल हैं। मैंने सिर्फ ये दोहराया कि ये एक इदारा है जो फैसला आया। मेरी एक शहरी होने के नाते अपनी राय है, अपने नुक्ता निगाह है, वो नहीं मिला मुझे जिसकी तवक्को थी। ये मेरा हक है कहने का, कहता रहूँगा। लेकिन ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जिस बड़े इदारे से जन्म लिया है, ऐसे इदारों ने जिसमें पार्लियामेंट हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इदारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जिसने हमें आज़ादी दे दी, उन लीडरों ने, जिसने मोहर लगा दी हमारे फ्यूचर दिशा पर, वो आईन हिंद है। मुझे ये बताइए कि वहाँ से मिला है हमें, उस आईन में दर्ज है 370। भला एक शहरी होने के नाते मैं नाउम्मीद क्यों हूँ? जो मुझे उस इदारे से मिला, आज बेशक उसमें रुकावटें आ जाए, परेशानियाँ हायल हो जाए, लेकिन मायूस नहीं रहूँगा मैं। जिस दिन 370 का फैसला आया, कई लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया कि ये कश्मीरी जो नेता है ये कश्मीरियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं 370 के इस फैसले को लेके। अब जो 370 का फैसला आया, मैनिपुलेट करना छोड़ दीजिए आप। नहीं, ये मैनिपुलेशन, मैं एक चीज़ बताऊंगा। एक अभी हमारा एक शहरी होगा जो भूख का शिकार है, वो कुछ फूड मांगे, खुराक मांगे भूख मिटाने के लिए, आप उसको मैनिपुलेशन से ताबीर कर लेंगे। हमारे नौजवान हैं, बड़ी तादाद है नौजवानों की। जम्मू की तरफ आप जाइए, यहाँ क्या था, क्या सपना देखा था कि भाजपा आएगी तो हमें नौकरी मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, यहाँ के कारोबारियों को अच्छा कारोबार मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा। ये मैनिपुलेशन है। अगर वो ये तमन्ना रखें, अगर एक बेरोज़गार रोज़गार मांगे या रोज़गार हासिल करने की तवक्को रखे या जदोजहद के रास्ते पर कारबंद रहे, क्या उसको आप मैनिपुलेशन से ताबीर कर लेंगे? अगर कोई महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाए कि बस करो यार, हमें भी जीना है, बाज़ार नहीं जा सकते हैं, जेब में इतना पैसा है नहीं, हमारे पास आमदन नहीं है, तो बताइए ये भी मैनिपुलेशन है। और अगर कोई ये कहे कि आप आज इदारों का जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसको भी इरोड कर रहे हैं आप, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई के घूंट उनको पीने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। मुझे बताइए, यही तारीख पार्लियामेंट में ये कहा गया कि कश्मीरियों से हम पूछते हैं जो नेता हैं, आप हमें दिखाइए कौन आर्टिकल 370 वापस मांग रहा है कश्मीरी नेताओं के अलावा। ये आवाजें उठी पार्लियामेंट, वो पूछ लीजिए ना। मैं इसी हाँ मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप राय आम्मा से पूछ लीजिए ना, मैं तो ये कहूंगा कि कभी आपने सुना है आज तक हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, मुल्क की हिस्ट्री को छोड़ लीजिए, आज के वक्त की हिस्ट्री को जांचिए, आप मुझे बताइए कि कोई भी रियासत, कोई भी खत्ता, कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट जहां असम्बलियां नहीं हैं, मुझे ये बताइए ना। एक खत्ता है वो जम्मू कश्मीर का है, और जम्मू कश्मीर के आवाम अगर इतने खुश हैं, एक बार पूछना था ना उनसे, असेंबली को डिसॉल्व क्यों किया, उस वक्त सतपाल मलिक को क्यों बुलाया, फैक्स क्यों खराब हो गया। साहब ये वाक़ात हैं,
वो बुरा महसूस करते हैं जब हम सच्चाई की तरफ उनकी ध्यान चाहते हैं कि मबजूल हो, उनको अच्छा नहीं लगता। अब मुझे बताइए, जिस दिन फैसला आया 370 का, जिस दिन मोहर लगी कि आर्टिकल 370 के जो वर्डिक्ट है उसको अपहेल्ड किया गया, उस दिन आपने खबर देखी शाम को नेशनल टीवी पे? क्या खबर थी? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेशंस हुई। जिन्होंने सेलिब्रेशंस की, वही मैं पूछ रहा हूँ। सेलिब्रेशंस आपका टीवी, आपका, उसमें ये दिखाएगा कि जम्मू के लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि 370 वो आज भी पूछ लीजिए ना। मैं वही कहता हूं कि आपके पास मैंडेट हो ना, चुनाव क्यों नहीं कराते? 370 के खात्मे के बाद भी चुनाव करते। सब कुछ उनके हाथ में है, अफसर उनके हैं, दिल्ली से ही फरमान भी जारी होता है कौन थानेदार रहेगा, कौन सिपाही होगा, कौन नंबरदार बनेगा। अरे तब भी आपके पास इतनी हिम्मत नहीं कि आप चुनाव कराएं। 5 साल में नहीं कराया। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि सितंबर से पहले चुनाव करवाइए। ये कहा है ना, करवाइए ना। अभी सितंबर तक क्यों इंतजार करना है? कल तक कर लीजिए। नई खबर है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और ये चीज़ आप रेफर कर लीजिए आवाम को, आवाम का फतवा भी देख लीजिए। क्या आपको लगता है क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? वो इसीलिए नहीं कराते। ये सब कुछ कराएंगे जब उनको लगे क्या चेहरा हमारा ही होगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है पॉसिबल? वो शीशा मिलता नहीं है उनको अभी जिसमें इनको अपना चेहरा, जहां तक इस आईने का ताल्लुक है, चुनावी आईने का ताल्लुक, एक बार उनको मिले ना, वो आपका और मेरा इंतजार नहीं कर लेंगे। और इसी वजह से हम कहते हैं डरे हुए हैं यार, सहमे हुए हैं। क्यों आप मुझसे पूछना चाहते हैं? उनके चेहरों पर ही नजर डालिए, इलेक्शन का नाम ले लीजिए, रंग उड़ जाता है असेंबली का खास तौर पर। अब मुझे बताइए कि जो कल मीटिंग नई दिल्ली में हुई, कई कश्मीरी नेता वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, दोबारा इस फैसले को देखा जाए। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? थोड़ा आप मैं सिर्फ मैं एक चीज बताऊंगा। जहां तक अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पहले काफी वक्त लगा जब हमने पिटीशंस दायर की। मैं उन दोस्तों से ये मुखातिब होकर कहना चाहूँगा जो अब भी कहते हैं कि क्यों गए अदालत में, कहाँ जाते। हमारा एक शहरी होने के नाते ये फरीज़ा भी है, जिम्मेदारी भी है कि हम हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हमारे आवाम को अपने हुकूक वापस मिले। ये आज भी ज़रूरी है, आने वाले कल में भी ज़रूरी है। और अगर एक रास्ता बंद हो जाता है या कहीं पर लगे हमें कि कोई दरीचा बंद हो रहा है, हम दूसरा दरीचा भी खोलने की कोशिश करेंगे। और तब तक, जब तक हमारे आवाम को वो मिले जो उनका रहा है, वो मिले जिसका वादा मिला है उनको, वो मिले जिसके लिए उन्होंने आज तक आस लगाई है, ये हमारा मानना है। और इसमें मायूसी अपनी जगह, यस, हम चाहते थे, इसी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कई लोगों ने, जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले और मुल्क के साथ बाअसर शख्सियात ने भी पिटीशंस दायर की। और आज मुझे बताइए, अखबार पढ़ लीजिए आप, और पुराने जितने भी बड़े बाअसर साबिका जज साहिबान रहे हैं, आप उनका तबसरा भी देख लीजिए। हमारे जो एडिटोरियल्स हैं मुख्तलिफ अखबारों के बाअसर, वहाँ भी इदारे लिखे गए हैं। ये नहीं है कि जहाँ तक हमारे माशरे का ताल्लुक़ है, हमारे सोसाइटी का ताल्लुक़ है, उसमें कई हिस्से, बाअसर हिस्से अब भी मौजूद हैं जो हमारी दर्द को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए था, जो अभी नहीं हुआ, शायद आने वाले वक्त में होगा। और उसी वजह से जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अभी मसलन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी वकला की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। अब हमारी नज़र में उस फैसले में कुछ गैप्स, हमारी नज़र में एक शहरी होने के नाते मैं ये जसारत करता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या जिक्र है वहाँ उस फैसले में कहीं पर भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यकतरफा तौर पर कानून के क्लॉजेस की परवाह किए बिना, आइन के क्लॉजेस की परवाह किए बिना एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउन साइज किया,
एक हिस्टोरिक स्टेट को की बाउंड्रीज को बदल दिया, 2 यूटीज में तब्दील किया। कहीं ऐसा हुआ है? आईएन खोलिए, आईएन खोलिए, आईएन खुद बता रहा है कि, और हमारा यहाँ हमारे पास हमारे जम्मू शहर से कई आज तक 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी एक तो बसलामत हैं और दूसरे अभी नहीं हैं। वो उन्होंने एक पूरा एक रिव्यू पेश किया है कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिलेशनशिप है जम्मू कश्मीर की मुल्क के साथ। उसमें वो क्या बता रहे हैं वो भी पढ़ लीजिए। मैं नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक मखसूस जगह पर एक मनसब पर रहे हैं, मैं जम्मू के शहरियों की, मैं पूरे मुल्क के लोगों से अपील कर लूँगा जो अभी भी हमारे साथ इख्तलाफ रखते हैं, वो मुताला कर लेना क्या लिखा है वहाँ। आज मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप मानते हैं आईएन मिला, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 दफ़ा दर्ज किया आईन हिंद में। बेशक टेम्परेरी है, लेकिन उसमें यह भी दर्ज है कि इसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको तरमीम या हटा सकता है, बशर्ते कि शर्त है। वो शर्त क्या है? विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लास खोलिए ना, किताब लाइए। अब मुझे बताइए कि एक सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि हम दोबारा पिटीशन जो लोग कहते हैं हम दायर करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता उसके बाद, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब फैसला आया उस पर ये कहा कि मैंने पहले ही कहा था इस पे या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है या हम पार्लियामेंट से इसको वापस ला सकते हैं जब हमें 1/3 मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन वो हमें कभी मिलेगी नहीं। तो वो क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या इशारा कर रहे हैं? और मेरे ख्याल में उनसे आप रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो बेहतर जानते हैं किस तरफ उनका इशारा है। मेरा इशारा, मुझे अपने इशारों पर चलना है और मेरा इशारा यही है। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो लोग आपको वर्गलाते हैं ये आपको 370 वापस नहीं दे सकते। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं लाऊंगा? वर्गलाने वाली बात तो तब हुई कि अगर आपकी मर्जी न हो और मैं आपको ज़बरदस्ती कुछ हवाले कर लूँ आप लोगों के नब्ज़ पर, तभी तो मैं कह रहा हूँ चुनाव हो जाए ना। और यही इशू सामने रख ले जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने कि 370 पर आपकी राय लेनी है, क्या आप चाहते हैं रखना या इसको हटाना? जो आवाम का फैसला होगा हमें मंजूर है। सारी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी गुजारिश है, ये लंतरानिया यकतरफा आवाम की राय, अगर आप समझते हैं कि आवाम ही ताकत का सरचश्मा है, वो जम्मू का आवाम हो या कश्मीर का आवाम हो, बल्कि लद्दाख के आवाम भी, हम उनसे रुजू कर लें, उनसे पूछ लें कि आपकी राय क्या है। और माशा अल्लाह उस पर भी ये तैयार नहीं है, चुनाव ही करा लेना सरकार बनाने के लिए, असेंबली के लिए, उसका मैंडेट भी देख लें। तो इस वजह से ये हमें कहने वाली बात नहीं है, वर्गलाने वाली बात नहीं है। कौन वर्गलाता है, कौन वर्गलाता नहीं है? अगर आप ये कहेंगे कि एक नौजवान को आप वर्गलाते हैं रोज़गार का वसीला देकर, रोज़गार का नाम लेकर, वो हमें मंजूर है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक बीमार को इलाज चाहिए अपनी दर्द का और अस्पताल की डिमांड कर लें, दवाई की डिमांड कर लें, अगर ये वर्गलाना है, तारीगामी मंजूर करता है ये जुर्म। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का शहरी ये चाहे कि मेरी टोपी मेरे सर पर रहे, मेरी पगड़ी कोई उछाल कर फेंके, ये मुझे मंजूर न था न होगा। पगड़ी जम्मू वालों की, कश्मीर वालों की, पहाड़ों में रहने वालों की, मैदानी इलाकों में रहने वालों की पगड़ी लाज होती है, इज़्ज़त होती है। हम अमन चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, हम जमहूरियत चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और हम डिग्निटी के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं। लोगों ने ये कहा था कि अगर हम बीजेपी को हराएंगे, एक साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर हम इनसे लड़ेंगे, इनको हराएंगे बीजेपी को। वो प्लेटफॉर्म कहाँ है पीएचडी आज वो सब चुपचाप है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पीएचडी पे नहीं, चुपचाप तो कोई नहीं है। मैं इतने कहूँगा अभी पीएचडी में बोल रहे हैं, अभी पीडीपी में बोलते हैं, वो अभी आज एनसीपी बोलती है। ऑल इंडिया लेवल पर अभी आपने देखा होगा, कल ही मीटिंग हो गई, परसों ही। मैं वही, जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा है ना। पीएचडी का क्या हुआ?
आप तो मैं वही कहता हूँ जम्मू कश्मीर भी उसका इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। पीएचडी का पूछ रहा हूँ। और मैं पीएचडी इलेक्शन के लिए बना नहीं था। आप देख लीजिए ये प्लेटफॉर्म कहाँ गया? वो प्लेटफॉर्म अब भी है। और बल्कि मैं ये कहूँगा आपकी वसातत से हमें चाहिए कि और भी क़ुव्वतें जो हैं सेकुलर क़ुव्वतें वो शामिल होना चाहते हैं पीएचडी के लेकिन जो साथ। बने हुए लोग थे वही तो आपस में आज झगड़ रहे हैं, आपस में क्यों? बयानबाजी कर रहे अरे साहब इलेक्शन के वक्त में कभी कभी दो भाई भी आपस में कुछ बातें कर ले, एक लीडर दूसरा लीडर, एक पार्टी के अंदर रहकर भी कुछ लीडर आपस में कुछ बयानबाजी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अलग अलग अपना ठिकाना बना दिया है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप ये सुन लें कि पीएचडी चुनावी प्लेटफार्म नहीं था ना है। पीएचडी लोगों के राइट्स को रेस्टोर करने के लिए बना है और ये जदोजहद जारी रहेगी तब तक जब तक जम्मू कश्मीर को अपने आईनी हुकूक वापस ना मिले, तब तक जब तक उनको जो आइन के अंदर जमहूरी सिविल लिबर्टीज़ के हुकूक, उसमें हमारा मीडिया भी शामिल है, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, उसमें मुलाजिम भी शामिल हैं, बेरोज़गार भी शामिल हैं, जब तक उनको आन बान के साथ ज़िंदा रहने के हुकूक वापस ना मिले, रेस्टोर ना हो जाए, पीएचडी जैसे प्लेटफार्मों की ज़रूरत रहेगी। उसमें आपस में नुक्ताचीनी करना मुनासिब नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वुसअत मिले हमारी आवाज़ को। ये एक आवाज़ का सवाल है, ये एक प्लेटफार्म का सवाल ही नहीं है। वो आवाज़ क्या है जो हमने खोया, वो हमें वापस मिलना चाहिए। अब बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के जो अब 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया अलायंस बना, उन्होंने कहा कि अगर हमने भाजपा को नहीं हराया, भाजपा को बाहर नहीं निकाला ऐवान से, पार्लियामेंट से, तो कल को ऐसा हो सकता है कि ये पूरे कानून ही चेंज कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर नेक्स्ट टाइम फिर से भाजपा आई 2024 में, तो जो हिंदुस्तान की कुछ तस्वीर बदल जाएगी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, अभी से आपको नहीं लग रहा है? अभी आप देख लीजिए क्या अनप्रेसिडेंटेड कल ही वाक़ा हुआ। 146 MPs राज्यसभा और पार्लियामेंट के, लोअर हाउस के, लोकसभा के, उनको सस्पेंड किया गया, निकाला गया। आज तक की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? जिस दिशा का, जिस अंदेशे का आप इजहार कर रहे हैं, वो अंदेशे उनकी शुरुआत होने लगी है। आप इतना ही क्यों, मुझे ये बताइए, क्या अभी भी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ है, कल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी होते थे, अब तो नहीं है ना। तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, दर्ज है, उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि जहां तक अभी दिल्ली की सरकार के बारे में, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ऑफिसरों को तैनात करने की जिम्मेदारी वहां की सरकार को है और हद इख्तियार में भी है, लेकिन उसके बाद ऑर्डिनेंस हुआ। ऑर्डिनेंस वहां चीफ मिनिस्टर का शुमार चीफ सेक्रेटरी के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दर्जे तक लाया गया। क्या आज तक आपने एक अफसर को और एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक ही सफ में खड़ा रखें? और एलजी वो अनइलेक्टेड मेंबर है, अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फाइनल अथॉरिटी उसको है। क्या ये जमहूरियत की निशानी है? जमहूरी अमल को तक़वियत देने की, ताकत देने की कोशिश है, या कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, बराबर है? क्या है? पहले ही दरवाजे पर दस्तक मिल रही है कि बीजेपी के होते हुए आईन महफूज नहीं, कानून महफूज नहीं, कानून की हुक्मरानी के दिन मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं। ये उम्मीद, ये आशा कि जमहूरियत में वसअत मिले, कहाँ? अभी आज गवर्नरों को आप देख लीजिए, गवर्नर इतनी मनमानी कर रहे हैं कि आप जो इलेक्टेड लोग हैं, कैबिनेट हैं, वो अपनी तकरीर लिख कर देते हैं, वो पढ़ता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। तमिलनाडु की तरफ आप जाइए, अभी केरला में गवर्नर हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला वहाँ के इलेक्टेड लोगों को गालियाँ तक देता है।
اب یہ حالات ہیں ہمارے دیش کے اندر، اور اسی وجہ سے آج ہمیں ڈر اس بات کا ہے اگر اپوزیشنل یونٹی نہ ہو، ایفیکٹولی وہ انٹروین نہ کر لیں، جمہوریت کو خطرہ ہے، آئینی ڈھانچے کو خطرہ ہے، عام لوگوں کے حقوق پر آنچ آئے گی، اس کا اندیشہ ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، میری اپیل ہے ہر شہری سے کہ وہ پرکھ لے ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، اور روک لگنی چاہیے ان قوتوں پر، ان پالیسیوں پر جس سے ہمارا جو آئین ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، جس سے ہمارا سیکولر ڈھانچہ سانچہ کمزور ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے، پارلیمنٹ میں یہ بھی بات ہوئی، امت شاہ صاحب نے کہا کہ جو گجرات میں دنگے ہوئے اس کے بعد جو پی ایم مودی صاحب ہیں انہوں نے دنگائیوں کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ آگے سے کوئی ایسا کرنے کا سوچے گا نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ میں جو تب گجرات میں ہوا، بہت سارے لوگوں نے انٹرنیشنل نیشنل سطح پر اکیڈمیشنز نے بہت کچھ کہا ہے، افسوسناک کہا ہے۔ تاریخ میں ہماری تاریخ کا ایک جو نہ ہونا تھا، نہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہوا، اس سے تعبیر کیا ہے ہمارے تھنکرز نے، لوگوں نے بھی۔ اور آج آپ ڈنکے کی چوٹ سے پارلیمنٹ کے اندر اس کی سراہنا کر لیں، کیا ہوگا؟ ایک شہری ہونے کے ناطے دکھ ہی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ابھی سیکولر قوتیں ہیں ابھی بھی میرے ملک میں جان زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بدل گیا ہے، سب کچھ بدلنے کا اندیشہ ضرور ہے لیکن ابھی بدلا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے شہری یہ جان لیں، ان کا فیوچر تب ہی ہے جب آئین بچے، ان کا فیوچر محفوظ تب ہی ہے جب سیکولر ڈھانچہ سانچہ زندہ رہے، سلامت رہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک اور وہاں پہ ایلیگیشن لگے نہرو پہ کہ انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ جو ہمارے سے جو ہے پی او جے کے چھن گیا، اس کے بعد ہمارا جو جموں کشمیر کا مسئلہ ہے وہ یو این او تک پہنچا ہے۔ میں ایک چیز ان سے سوال کر لوں جو یہ سوال پوچھتے ہیں، ایک الزام ان کو یہ بھی دے دیجئے کہ جموں کشمیر حصہ بنا ہندوستان کا، شاید وہ بھی ان کی غلطی تھی، کبھی ایسا بھی ہوگا۔ پی او کے نہیں بنا، پی او کے نہیں بنا، وہ دوشی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ جو باقی جموں اور کشمیر بنا، ہندوستان کا مسلم میجارٹی حلقہ ہوتے ہوئے بھی ٹو نیشن والے ملک کی طرف گیا نہیں، یہ کن کا کنٹریبیوشن ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے، جموں کشمیر کی قیادت کا ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کا ہے، مہاتما گاندھی کا ہے۔ اور میں ان کو جو ایسی خرافات کہتے ہیں، میں خرافات کہتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ یہ انفاؤنڈڈ ہے، ان ہسٹورک ہے۔ ان سے ایک بات کہوں گا کہ شیاما پرساد مکھرجی صاحب کو ہی پڑھ لیجئے، کہاں تھے وہ ان دنوں؟ اس وقت وہ بھی کیبنٹ میں تھے، جس کی آج قسمیں کھا رہے ہیں پٹیل صاحب کی، یہ بار بار غلط طریقے سے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ کہاں تھے وہ؟ دست راست تھے پنڈت جواہر لال نہرو کے۔ اگر جو کچھ ہوا، اگر غلط ہوا، اگر پنڈت جواہر لال نہرو ذمہ دار ہیں، شیاما پرساد مکھرجی کو کہاں کھڑا کر لیں گے؟ کیونکہ وہ بھی کیبنٹ میں تھے۔ پٹیل صاحب وہ بھی کمانڈ میں تھے، ان کو کہاں کھڑا کر لیں گے؟ گریبان میں جھانکنا بھی، وہ سلیقہ بھی ان کو آنا چاہیے جو ایسے بے بنیاد الزام دے رہے ہیں ملک کے قداور شخصیات۔ اب مجھے بتائیے، دیش میں آج کل حلال پہ بین چل رہا ہے، اور جتنے بھی حلال پیکڈ آئٹمس آ رہی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے، ان پہ بین لگایا جا رہا ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ وہ اس لیے کیونکہ حرام کی دکانیں کھولی ہیں، کرپشن ہے، ہاہاکار ہے، اور جو جائز ہے اس پر پابندی ہو، اور جو غلط ہے، حرام کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ بہرحال میں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے پہلے میں ابھی مندر کی بات بھی ہو رہی ہے، وہ میں سوال پہ آؤں گا، لیکن پہلے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں جہاں پہ
रोजगार की बात होनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट की मैं वही कह रहा हूँ कि आज आप देख लीजिए कि अभी जो आपने सवाल नहीं पूछा मुझसे कि जीडीपी बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमी बन गई है, यही कहा जा रहा है। मुझे ये बताइए कि ट्रिलियनर्स हैं हमारे मुल्क में, अडानी साहब, और बिलियनर्स भी हैं, बड़ी तादाद हैं, अच्छी तादाद है बिलियनर्स की। मुझे ये बताइए कि आम शहरी की जेब में कितना पैसा आया। वो बाज़ार जाए, उस चीज़ को नापने का एक ज़रिया है कि आपकी परचेजिंग क़ुव्वत क्या है, परचेजिंग पावर आपका क्या है। ये हम नहीं कहते हैं। हंगर लिस्ट में कहाँ है हमारा नाम? बड़े ऊंचे हरूफ से बड़े ऊंची सतह पर लिखा गया है। कहाँ नंबर है हमारे मुल्क में जो एक नौजवान को बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद रोज़गार मिलने की आशा होती है, तमन्ना होती है, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए वसीला चाहिए उसको, वो वसीला कहाँ है? और आज भी अभी आप देख लीजिए कि जो कई स्कीमें उन्होंने शुरू की है मुल्क के अंदर, पैसा कहाँ है? जो पुरानी स्कीमें चल रही थी उनको ही कमज़ोर किया गया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, उसके बारे में भी पर्दा उठना चाहिए। तो इसी वजह से हमारा ये मानना है, क्या मुल्क के अंदर इक़्तिसादी सूरत हाल माना अमीर और रईस उनकी जेबों में पैसा आया है, वो बड़े उनके पास बड़ी तादाद में बड़ा ज़ख़ीरा है पैसा का, लेकिन गुर्बत के अंबार में भी है हमारे देश के अंदर, गुर्बत के, इफलास के और ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करने पर हमारा जो युवा पीढ़ी है वो मजबूर है। उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। अरे साहब, गिरबान में झांक कर देख लो। हाँ, इनके पास अब यही सवाल है कि आपस में पोलराइजेशन हो, टकराव हो, हलाल क्या हो, हराम क्या हो। अरे हलाल मीट वही खाएगा जिसकी जेब में पैसा है। आज तो साग खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए पैसा बचा नहीं है। ये हालत है हमारे देश के अंदर, और इसी वजह से जो यूएनओ के मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने हमारा नाम ऊंचे लेवल पर रखा है जहाँ तक हंगर लिस्ट का ताल्लुक़ है। और बेरोज़गारी में भी माशा अल्लाह हम किसी से कम नहीं, आगे दौड़ रहे हैं। और इसीलिए अग्निपथ वगैरह की स्कीमें, जैसे कि 4 साल तक आपके फौजी रहे और उसके बाद कहाँ जाए, ये खुद हम नहीं कहते हैं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साबिका लिखते हैं अपनी किताब में। इन पर भी नज़र पड़नी चाहिए। हमारे देश में, हमारा देश, उसमें मशरिक़, मगरिब, जनूब, शुमाल से रहने वाले लोग, कोई तामिल हैं, कोई डोगरी है, कोई कश्मीरी है, कोई पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है। यारा इसको तकसीम मत करो। अब मुझे बताइए कि अभी इसको तोड़ो मत। राम मंदिर का भी इब्तिदा होने वाली है और डॉक्टर फरीदुल्लाह कहते हैं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। मैं सिर्फ इतना ही, आपका भी मन था जाने का? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि